ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2 बुक सेकंड। पहली बुक में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट की डिफरेंट अप्रोचेज, उपागम जिनमें इनकम उपागम, आय उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, इनके बारे में पढ़ा था तथा पिलर्स 4 पिलर्स पढ़े थे, इंडिकेटर्स पढ़े थे जो UNDP द्वारा तैयार किए गए। इस अध्याय में हम भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, उन इंडिकेटर्स का एवैल्यूएशन, विभिन्न राज्यों की तुलना, विभिन्न समाज के समुदायों की मानव विकास की स्थिति का आकलन करेंगे। सबसे पहले जो पश्चिमी विचारधारा है मानव विकास की, उसके बारे में हम जानेंगे। The Western view of development. It is believed that development is freedom, which is often associated with modern leisure and affluence. In the present context, computerization, industrialization, efficient transport and communication network, large education system, advanced and modern medical facilities, safety and security of individuals, etc., are considered as the symbol of development. विकास के रूप में हमें स्वतंत्रता का विकास, जो सामान्य रूप से आराम, प्रभावशाली जीवन, कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन तथा संचार के अच्छे साधन, एजुकेशन सिस्टम का विस्तार, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सुरक्षा इंडिविजुअल की, ये विभिन्न सिंबल हम डेवलपमेंट के रूप में समझते हैं। एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मेजर्स इट परफॉर्मेंस और लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन to the availability and access to some of the things, but this may be partial and one-sided view of development. It is often called the Western or Eurocentric view of development. इस प्रकार विकास की विभिन्न उपलब्धियों को समुदाय, सरकार उनकी इवैल्यूएशन करती है, विभिन्न स्तर पर विकास के स्तर की जांच करती है, लेकिन ये सब एक पक्षी विचारधारा है जो यूरोप सेंट्रिक है, यूरोप केंद्रित है। इस विकास का एक दूसरा पहलू है जिसका इसमें अनदेखी की गई है। It is often called the Western or Eurocentric view of development. For post-colonial country like India, colonization, marginalization, social discrimination, and regional disparities show the other face of development. भारत जैसे देश में जो लंबे समय तक कॉलोनियल शासन के अधीन रहा, वहाँ पर सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव, क्षेत्रीय विषमता विकास का दूसरा पक्ष शो करती है। इस प्रकार फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड deprivation. There are few areas like the metropolitan centers and other developed enclaves that have all the modern facility available to a small section of its population. It is the other extreme of it. There are large rural areas and slums in the urban areas that do not have basic amenities like potable water, education, health, infrastructure available to the majority of this population. This situation is more alarming if one looks at the distribution of development opportunities among different sections of our society. It is well established fact that majority of scheduled caste, scheduled tribes, landless agricultural laborers, poor farmers and slum dwellers are most marginalized. A large segment of female population is the worst sufferer among all. It is also equally true that
the relative as well as absolute condition of the majority of the marginalized section have worsened with the development happening over the years. Consequently, vast majority of people are compelled to live under abject poverty and subhuman condition. There is yet another interrelated aspect of development that has direct bearing on the deteriorating human conditions. It pertains to the environmental pollution, leading to ecological crisis. Air, soil, water, noise pollution have not only lead to the tragedy of common, but these have also threatened the existence of society. Consequently, the poor are being subjected to three interrelated processes of declining capability. First, social capability due to the displacement and weakening of social ties, social capital. लोगों को जब विकास योजनाओं के कारण विस्थापित किया जाता है तो इनसे उनके सामाजिक जो संबंध हैं एक जगह से टूट जाते हैं, जैसे हम सामाजिक संपत्ति के रूप में आंक लेते हैं। इससे उनकी क्षमता में कमी आती है। दूसरा, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी ड्यू टू पॉल्यूशन एंड थर्ड, personal capability due to the increasing incidence of diseases and accident. दूसरी, सामाजिक क्षमता में कमी पर्यावरण के कारण कि उसके दुष्प्रभाव हमें विभिन्न पॉल्यूशन के रूप में झेलने पड़ते हैं। इससे गरीबों की जो पर्यावरणीय क्षमता कम हो जाती है। थर्ड, पर्सनल कैपेबिलिटी, व्यक्तिगत क्षमता जिसमें उनके साथ कोई घटना या बीमारी या एक्सीडेंट, इससे उनकी व्यक्तिगत जो क्षमता है वो कम हो जाती है। दिस इज इन टर्न हैड एडवर्स अफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे उनकी जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास प्रभावित होता है और उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास क्या है, इसकी जो अवधारणा है उसका यहाँ संक्षेप में हम उसकी परिभाषा के रूप में एक बार पुनः देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग the people's choices, increasing their percentage for education, health care, income and empowerment, covering the full range of human choices from the sound physical environment to economic, social, political freedom. Thus, enlarging the range of people's choices is the most significant aspect of human development. People's choices may involve a host of other issues, but living a long and healthy life, to be educated and to have access to resources needed for a decent standard living, including political freedom, guaranteed human rights, personal self-respect, are considered some of the non-negotiable aspects of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम व्यक्ति की एनलार्जिंग देयर चॉइसेज, विकल्प, मनुष्य के विकल्पों को बढ़ाना, इन विकल्पों के द्वारा वो अपनी फ्रीडम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही उन्हें एजुकेशन प्राप्त करनी है उसके लिए उनके पास विकल्प होने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की केयर के लिए उनके पास विकल्प होने चाहिए, सशक्तिकरण के लिए उनके पास विकल्प होने चाहिए। इस प्रकार विभिन्न विकल्पों के द्वारा उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह की स्वतंत्रताएं उसकी होनी चाहिए। समाज में उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके मानवाधिकार की गारंटी मिलनी चाहिए, समाज में उसे समाज मिलना चाहिए। इस तरह के ये विभिन्न जो पहलू हैं वो नॉन नेगोशिएबल, इनमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में मानव विकास।
according to UNDP 2017 रिपोर्ट इंडिया रैंक 130 इन द वर्ल्ड। इससे पहले 2016 की UNDP रिपोर्ट में यह 131वीं रैंक पर था। इस निम्न मानव विकास इंडेक्स के कई कारण हैं। सेवरल सोशल cultural historical factors are responsible for the low HDI score of India. Social cultural factor, human right violation, social discrimination based on religion, gender, caste, political factor like nature of state, form of government, democracy or dictatorship, level of empowerment, historical factor, colonization, imperialism and neo-imperialism. The Planning Commission of India, which is now known as Niti Aayog, also prepares a Human Development Report for India. Indian states and union territories are units for analysis using the indicators selected by the United Nations Development Program. मानव के निम्न HDI रैंक के लिए कई कारण जिम्मेदार है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कारण, मानवाधिकार का उल्लंघन, सामाजिक भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, कास्ट आधारित भेदभाव, राजनीतिक कारकों में राज्य की प्रकृति, सरकार का प्रकार, डेमोक्रेसी या तानाशाही, लेवल ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का स्तर, ऐतिहासिक कारकों में उपनिवेशीवाद, कॉलोनाइजेशन, न्यो इम्पेरियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। भारत में योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की है भारत के लिए, जिसमें भारत के राज्य तथा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित क्षेत्रों को विश्लेषण की इकाई माना गया है और UNDP के जो इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं, उनका उपयोग किया गया है। UNDP subsequently the state also started preparing human development report. राज्यों ने भी अपनी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने जिले को एनालिसिस की यूनिट माना है तथा इंडिकेटर के रूप में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP तथा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी संसाधनों की उसको असेस किया है। स्टेट विद लो पर कैपिटा इनकम फॉर लेस देन 2000 पर ईयर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, ये राज्य हैं जिनमें ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, इसमें ये काफ़ी पीछे हैं। पॉवर्टी इज अनदर इंडिकेटर, इट इज द स्टेट ऑफ deprivation and reflect that people are unable to satisfy their basic needs for a sustained, healthy, reasonably productive living. In India, poverty level varies regionally. भारत में गरीबी मानव विकास का एक प्रमुख संकेतक है जो विभिन्न देशों में काफ़ी इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, इसके अंतर्गत सम हेल्थ इंडिकेटर दैट रिफ्लेक्ट ऑन हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिया आर लिविंग ए रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पान मेजर। इसके अंतर्गत हमारे एक लंबा जीवन मापन का एक स्टैंडर्ड, मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय हमारी जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक रोजगार का संकेतक। द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड अदर फोकस ऑफ डोमिनेशन। रोजगार हमारे मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इंडिकेटर है। हमें भूख, गरीबी, बॉन्डेज, बंधुआ मजदूरी,
अज्ञानता, अशिक्षा, इन विभिन्न चीज़ों से मुक्ति मिलनी चाहिए। भारत में साक्षरता, लिटरेसी इन इंडिया, 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। राज्यों में भी इसमें काफ़ी अंतर है। द लिटरेसी इज लोएस्ट इन बिहार। बिहार में लिटरेसी सबसे कम जो 47.53% तथा केरल में हाईएस्ट 90.92%। दिस शो लार्ज रीजनल डिस्पैरिटीज। Large literacy is very low in the rural areas. Some marginal section of the society like female, scheduled caste, scheduled tribe, agricultural laborers. भारत में क्षेत्रीय विषमताएं साक्षरता में काफ़ी अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत जो मार्जिनल सेक्शन है समाज के, जिनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषि मजदूर, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अमॉन्ग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। यूएनडीपी के अनुसार भारत का जो ह्यूमन विकास सूचकांक है वो मध्य विकास वाले देशों में शामिल है। इसके लिए हिस्टोरिकल रीजन, सोशल डिस्पैरिटी, रीजनल इम्बैलेंसेज that developed in colonial times continue play significant role in Indian economy, polity and society. Even the government of India has made great efforts with a focus on planned regional development and made significant progress. The achievements are still below the desired level. यद्यपि हमारा मानव विकास की स्थिति में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐतिहासिक जो कारण रहे हैं उनको दूर करने का, असंतुलन को दूर करने की लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी इस नियोजित विकास के अभी तक उचित परिणाम नहीं आए हैं। अचीवमेंट आर स्टिल बिलो द डिजायर्ड लेवल। वांछित लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है। इन इंडिया ऑल्दो इट हैज़ ब्रॉट इन significant improvement in quality of life in many ways, there are regional disparities, social inequalities, discrimination, deprivation, displacement of people, abuse of human rights, and undermining human values and environmental degradation. यद्यपि भारत में काफ़ी सुधार हुए हैं, जीवन के गुणवत्ता के कई पहलुओं में काफ़ी सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्रीय विषमताएं मौजूद हैं, सामाजिक असमानताएं मौजूद हैं, भेदभाव मौजूद है, वंचित हैं लोग सुविधाओं से, लोगों को विस्थापित का प्रभाव झेल रहे हैं तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। इस प्रकार मानव वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मानव मूल्य तथा पर्यावरण का गिरावट भी एक कारण रहा है। यूएनडीपी इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 1993 emphasized on people's participation, security, progressive democratization and an increase in empowerment. मानव विकास ने अपनी 1993 की रिपोर्ट में लोगों की भागीदारी, सुरक्षा, लगातार लोकतंत्र के उपलब्धियों में उनकी हिस्सेदारी तथा उनका सशक्तिकरण महत्वपूर्ण पहलू है। धन्यवाद।